It's my pleasure to welcome you on today's workshop. The workshop on navigating the pathways of publishing in high-quality journals is organized by the Center for Media Research and Publications in collaboration with Elsevier. The workshop primarily aims at highlighting the fundamentals of writing research papers and referencing through mentoring. To help us in this research endeavor, we have with us Dr. Nitin Ghoshal, Consultant Core Content Elsevier. I now request Professor Vinita Gupta, Dean Center for Media Research and Publication, to welcome Dr. Ghoshal with a sapling. Moving ahead, it's my privilege to introduce our seasoned speaker of the day, Dr. Nitin Ghoshal, who is presently working as a customer consultant at Elsevier South Asia. Dr. Ghoshal is a PhD in radiation biology from the Department of Biotechnology and Bioinformatics, Northeastern Hill University, Shillong, Meghalaya, and gained further experience through research associateship in heavy ion radiation biology from Inter-University Accelerator Center, New Delhi. In his previous assignments, he has an experience of 6 years in the diagnostic portfolio of Biorad Laboratories as an application specialist, Pan-India technical support, and 2 years as a medical affairs manager in BD, pre-analytical systems. I now invite Dr. Ghoshal to share his valuable experience with us. Thank you so much, ma'am, for this brief introduction, and thank you, Dr. Vinita and Rajni ma'am, we already met, Dr. Simran, for arranging this wonderful session for all of us. So, do we have pure researchers also here, or we have assistant professors? More in number? Only faculty members. Only? Okay, only faculty members. But they would be pursuing PhDs. Great. So anybody has an experience, a kind of like, I don't know why the editor has rejected my paper. Same paper 2 years back somebody else also submitted. That is also published. A similar kind of work I did, but it did not get selected. Is there a similar kind of experiences with anyone? We can make it interactive because not much time is left. I'm sorry for the little delay that occurred. Institutional tea stall becomes the place of discussion, saying that अरे वो एडिटर ही बेकार है, पता नहीं क्यों मेरा काम रिजेक्ट कर दिया उसको. So this may happen. So what happens? We'll discuss little bit nitty-gritties around the publication pathways that you might feel interesting. So I will cover certain basics, and of course before that, let me navigate through few of the data here. Not much to speak about because it's huge, but yes, as you can see, the first one, more than 140 years of experience in curation and verification. This is what Elsevier has survived through the times. Always the challenges that both the world wars also has brought, even that has also passed. So this was one of the major criteria. The slide I didn't see before joining Elsevier, of course, but I knew when I thought to transit from diagnostic to back to publication. I joined Elsevier this year only, but last year the interviews began. That time this was my criteria, it looks to be a very stable institute, which of course has a very huge number of editorial board members, and we have seen that over the years
with 5% CAGR growth, Elsevier is moving. That was good. Right. And we have 16 million monthly unique visitors on our platforms. Already more than 1 billion articles have been downloaded. So these are certain kind of data which, of course, is unmatched. Important. Like research preparation, which may include funding, research, finding the right funders, research data management, research collaborations. Then comes writing for research, right, which may include fundamentals of manuscript preparation, writing skills, technical writing skills involved, and book writing skills involved. Then publication process, which may further have certain skill sets where we can improve. Similarly, in navigating peer review and communicating the research also. So, these are what? Right away, I am forwarding you this. Kindly go to this website, which is mentioned, researchacademy.elsevier.com, and register yourself. It is not going to ask you any money, but on the skill sets that we discussed, it will be having multiple small modules to cover, making an impact. And not only that, say for example, I may not be that good in my English writing skills. So what I do during writing papers, I may hire a third party. Always that option is open. But say for example, this may be having some manuscript preparation skill set module that we can go through. That will give me the basics of how to uplift that. So it has numerous courses you can go through. And you can also give it to anybody who is doing or pursuing PhD as a student also. Sir, I guess the link is not working. It could be @elsevier.com. No, is it not working? @ is missing, so I guess it could be Research Academy @elsevier.com. That is what So, it's working. Elsevier Research Academy. इतना भी आप टाइप करेंगे गूगल में, it will give you. And you will be amazed that during the research journey, we have a whole gamut of solutions. Like, say for example, if I am in a planning phase of research, there are certain platforms like Scopus, which help us to plan our research. It will give us the interest, lab of our interest, a person or the scientist whom I want to communicate, or anybody who is working in my field I want to collaborate with, or I am searching for the right funder for my project. So I will choose a set of documents, and those set of documents will have these additional informations when I go into Scopus for best planning of my research. Then when it comes to execution phase, there is Science Direct, which helps you with the information. I will give a glimpse of how it helps you. Right? Similarly, for management of the material that we collect and bibliography, we have a Mendeley, which is also a part of discussion today. Let's see how much we are able to cover it. Then let's try to understand your needs. Okay. In any given point of time during the research journey, I hope you would agree that these are the milestones that we have to cover. And staying up to date is a major challenge. Why it is a major challenge? Suppose my work starts with literature search. When I started, I was not aware of these things. I Googled and lots of data come in. Somebody suggested, अरे पहले 2 पन्ने ले ले, उसी में इम्पोर्टेंट होता है. किसी ने बोला कि अरे पहले 3-4 पन्ने ले लो, वही इम्पोर्टेंट है, Google. What about the lakhs of data? How to screen out the right thing for me? I was not aware of that. So what happens?
all these data might not be useful. Certain logics have to be applied. Google की कुछ limitations हैं. आप timeline को तो logic apply कर सकते हैं, filter apply कर सकते हैं, but you further cannot narrow down to an extent what our platform can provide you, right? And after you put the logic or filters, you get some information. You can think, okay, this can be of some use to me. Still now, it might not be that apt. Still you have to screen out. Information बहुत है, कौन सा लूँ? अभी भी information का number lakhs में है. Now what happens? वो information सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा? When it is peer reviewed, when the information comes to you as a peer review, it becomes authentic. Then you can trust it. Now, when you get the peer reviewed information, that we call the knowledge. Means, say for example, if you are using any platform like Science Direct or maybe Science Direct, suppose, then you are deciphering the information at the knowledge stage. What you are downloading is at the knowledge stage, not at like Googling stage. वो जो पहला data stage था वो आप पार कर गए, information भी पार कर गए, and you are at the knowledge stage when you are downloading some paper. Means it is ready for application directly. So एक data है which says that around in a week a researcher spends 4 hours in searching and 5 hours in reading the materials. But that is a very general survey. When it comes to time-saving methodologies, it can be calculated कि ये data आप और कम कर सकते हो. और जब आप वीक में 1 घंटा भी बचाएंगे ना, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी में सपोज लिटरेचर सर्च में अगर मैं टोटल 6 महीने दे रहा हूँ तो वो कितना महीना रिड्यूस हो जाएगा. एंड इट्स नॉट दैट कि आई एम गोइंग थ्रू इट वंस. इट्स लिटरेचर सर्च, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस, डिसमिनेशन. ये जो साइकिल चलता है ना, इट गोज ऑन फॉर मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग आवर रिसर्च जर्नी, इट नॉट वंस. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो सेविंग टाइम इज इम्पॉर्टेंट. Then you get those insights and you produce some wisdom. Like wisdom is the final dissemination or paper production. Well, this was a glimpse of how the information flows and how we are benefited when we are utilizing a platform like Science Direct. Let's move on to our agenda slowly. Origin of scientific publication. Not much time to wonder about here, but in 1665, it was the first journal, Philosophical Transaction of Royal Society. Right? It still exists as part A and part B. And if you see, that has got a structure which is called registration and archiving, dissemination and peer review. Even today, we have a similar kind of structures for our journals. किसी भी journal को आप open करेंगे, it has some quality structures inside, the major architecture. And if you see, nowadays it is increasing like anything. More than 6,000 scientific journal publishers हैं, which produces 45,000 peer-reviewed scholarly journals, and more than 3 million published articles every year, and 4 million unique authors in a year, which is increasing every year, at least by 3%. Achha, generally, what you have seen, we have what type of different access types are there? Open access. ये तो सुना है, open access है. And second one, सब्सक्राइब. मतलब एक हो गया सिंपल, पे टू रीड और पे टू पब्लिश. राइट. तो अगर ऑथर ने पे कर दिया है तो इट इज ओपन एक्सेस फॉर मी. आई विल जस्ट रीड इट फ्री ऑफ कॉस्ट.
अगर ऑथर ने पे नहीं किया है तो देयर कुड बी इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन विच माइट बी रिक्वायर्ड. ओके, एंड उसके बीच में भी कुछ छोटे मोटे ट्विक्स हैं, लाइक ग्रीन ओपन एक्सेस, गोल्ड ओपन एक्सेस, हाइब्रिड जर्नल्स हैं. तो ऑल द सब्सक्राइब मॉडलिटीज ऑल्सो गिव यू ऑप्शन टू गो फॉर ग्रीन ओपन एक्सेस. ग्रीन ओपन एक्सेस में क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपने कहीं सुन लिया कि भाई ओपन एक्सेस पब्लिश करेंगे तो बहुत साइटेशन मिलता है, सुन लिया मैंने, नाउ आई एम सर्चिंग फॉर, यार ओपन एक्सेस तो बहुत पैसा मांग रहा है, इतना तो है नहीं. सो व्हाट आई कैन गो फॉर, आई कैन गो फॉर ग्रीन ओपन एक्सेस. तो ग्रीन ओपन एक्सेस में क्या होता है, द जर्नल गोज इनटू ए एम्बार्गो पीरियड. मतलब इन दैट एम्बार्गो पीरियड सब्सक्रिप्शन मॉडल में चलेगा फॉर फ्यू मंथ्स, 8 months, 10 months, एज पर द पॉलिसी ऑफ द जर्नल. उसके बाद वो ओपन एक्सेस हो जाएगा. हॉट वाटर ही चल रहा है, सॉरी. ओके, क्विकली, अच्छा, एनी क्वेश्चंस अराउंड दिस? ओपन एक्सेस, सब्सक्रिप्शन, you got an idea, right? Then we go for generally what are the organization. एडिटर है और पब्लिशर, इन दोनों के बीच की कहानी है पूरा मैनेजमेंट. What does an editor do? He checks for responsible. He is responsible for the quality, checks papers and decides which paper to get published and which are to be rejected. Then coordinates the peer review process, communicates with authors, reviewers, defines aims and scope, advises on strategy, and so on. And if you look at the publisher point, whatever the editor does, publisher felicitates it. Right? Any discrepancies, policy-related matters, and those things. And also appointments of editors and editorial board. Okay, this takes a little more time, so I will quickly go through the metrics in just 5 minutes. Generally time लेता हूँ इसमें, but आपको एक fair idea दे दूँगा, I wish. Impact factor everybody knows? Yes? No? Okay. So जितना ज़्यादा impact factor, उतना अच्छा जर्नल? Generally yes. एक क्लिनिकल जर्नल है which directly affects the life of a person. Impact factor 50, 60. एक मैथमेटिक्स जर्नल है, ये मान लीजिए इकोनॉमिक्स जर्नल है. इम्पैक्ट फैक्टर कितना? 1, 2 या पॉइंट्स में, मीन्स वो बेकार नहीं. What happens? Trending subjects have generally more impact factor. That is the biasness. Impact factor के साथ ये कहानी है. सारे आप मोस्ट ऑफ द मेट्रिक्स देखेंगे साइटेशन बेस्ड ही होते हैं जनरली, लेकिन क्या होता है सबका जैसे इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता. अपकमिंग जर्नल हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर अभी आया नहीं है, आएगा, बट दे आर वेरी गुड. कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड एज इम्पैक्ट फैक्टर्स. इम्पैक्ट फैक्टर इज बायस्ड टुवर्ड्स फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स, ये भी हमने बताया. तो इनको नेगेट करने का भी तरीका होता है. जैसे साइट स्कोर हो गया, साइट स्कोर अगेन इज ए साइटेशन बेस्ड मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसमें इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, क्लियर एंड करेंट. पिछले महीने का मुझे साइट स्कोर जर्नल का पता होगा, इम्पैक्ट फैक्टर तो 1 साल में मिलेगा. आई डोंट नो कि बीच के मंथ में क्या हुआ, नो आइडिया. ठीक है, तो अगर साइट स्कोर में जाते हैं तो वी गेट द करेंट थिंग्स हैपनिंग विद द जर्नल स्टेटस. और कई बार ये भी होता है कि इफ देयर इज नो impact factors, see the site score or maybe see other related metrics, how popular is the journal among the audience. That will give you an idea of how to choose the right audience. वो उसका part है, where it is mostly used. अब जैसे SNIP है, SJR, these are also some metrics. ये भी citation based ही हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे biasness को खत्म करेगा. Source normalized impact per paper. मतलब मैथमेटिक्स का एक साइटेशन, वो क्लिनिकल वाले का एक साइटेशन, पॉइंट्स दोनों को बराबर मिलेंगे. मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी इज एम्प्लॉयड टू नेगेट दैट बायस.
साईमैगो है, साईमैगो में क्या होगा, साईमैगो में इट इज इंपॉर्टेंट कि कौन से सोर्स से वो पब्लिकेशन आया है। से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्पेस साइंस पे कोई वर्क हो रहा है और मान लीजिए सर आपका स्पेस साइंस का अगर काम है और स्पेस साइंस में आपने 100 पेपर्स, एक पेपर पब्लिश किया जिसकी 100 साइटेशंस है, एंड आउट ऑफ दोस 100 साइटेशंस 2 साइटेशंस वर फ्रॉम नासा, तो वो 2 साइटेशन ने जो काम कर दिया वो 88 ने भी नहीं किया था, सॉरी 98 ने भी नहीं किया था। तो दैट इज एसजेआर, साईमैगो जर्नल, कहां से साइटेशन आया, उसकी रेपुटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, डिफरेंट साइटेशंस का एक बैलेंस क्रिएट है। तो हमारा मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं कोई एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो हमें जर्नल को चूज करने में हेल्प करेगा। ठीक है। ऑथर लेवल मैट्रिक्स भी है। ऑथर लेवल मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं, कई बार ये भी जर्नल का ही ऑल्टरनेटिव हो जाता है। जैसे आई डोंट माइंड कौन सा जर्नल है, ऑथर ये होना चाहिए क्योंकि इस ऑथर का नाम बड़ा है, दैट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल। अब ऑथर मैट्रिक्स की बात करें तो एच इंडेक्स इन स्कोपस विल बी स्लाइटली लोअर देन एच इंडेक्स ऑफ द गूगल। क्यों? क्योंकि गूगल में जनरली क्या होगा, इट कवर्स नॉट ओनली जर्नल्स बट एकेडमिक वेबसाइट्स, ग्रे लिटरेचर है, प्री प्रिंट्स है, थीसिस है, डुप्लीकेट एंट्रीज है, मतलब ये सारी चीजें कवर करके वो थोड़ा हाई एच इंडेक्स देता है। ठीक है। एच इंडेक्स डेफिनेशन आपको गूगल में मिल जाएगा। आई कैन ऑल्सो टेल, होता क्या है, आप ऑथर की रेपुटेशन में इससे मेजर कर रहे हैं। ठीक है। देन एनीबॉडी वांट्स टू नो व्हाट इज एच इंडेक्स? ये चले आगे। These are also citation based. कितने पेपर को कितना साइटेशन मिला? मान लीजिए 1662 डॉक्यूमेंट्स हैं, आउट ऑफ दीज 133 पेपर्स गॉट 133 citations each, and rest of the papers 1662 minus 133, जिसमें citation 133 से कम है, that is H index. प्लमेक्स मैट्रिक्स भी है। ट्विटर में, फेसबुक में जो हम अपने चुनिंदा पेपर्स को डालते हैं, जो कॉमन ऑडियंस में भी काफी पॉपुलैरिटी गेन करता है कोई स्टडी, सो दैट काउंट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड वो प्लमेक्स में काउंट होता है। ठीक है। अब आते हैं मोर इनटू द कोर एजेंडा, ए टिपिकल पब्लिशिंग वर्कफ्लो। ठीक है। टिपिकल पब्लिशिंग वर्कफ्लो क्या है भाई? स्टार्ट किया, सबमिट ए पेपर, राइट? व्हाट डज द वर्कफ्लो शोज? बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर मेट और नॉट, दैट इज डिसाइडेड बाय एडिटर, द येलो बॉक्स इफ यू कैन सी। देन अगर नहीं मेट हुआ तो रिजेक्ट स्ट्रेट अवे, अगर मेट हुआ है देन द रिव्यूअर्स आर असाइंड बाय द एडिटर्स। ठीक है। देन व्हाट विल हैपन? They will review, give their recommendations. कोई मेजर रिव्यू करना है, कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करना है, वहां पे एक डिसीजन है, लोअर रोम्बस येलो कलर जो है, मेक ए डिसीजन, देन पेपर रिवाइज होगा, आपके पास वापस आएगा, पेपर रिवाइज करेंगे, आप दोबारा सबमिट करेंगे, इट गोज टू द सेम साइकिल, फाइनली अगेन द रिक्वायरमेंट्स आर मेट और नॉट, इफ यस पब्लिश, राइट? दिस इज वेरी कॉमन। लेकिन हुआ क्या इस बीच में? What editors want? ये जो इंफॉर्मेशन अब हम शेयर करेंगे आपसे, बेसिक चीजें हैं, हमें पता होती हैं, बट ये स्ट्रेट अवे फ्रॉम द माउथ ऑफ द एडिटर्स है, जो हमारे एडिटर्स हैं, उन्होंने शेयर की कि these are the points we do look into. Let's see what are those. Editors क्या चाह रहे हैं? पेपर is scientifically correct or not, if it reports something new or not, if it reports something significant, if the paper is of interest to the readers. Makes sense? ठीक है। Then why it is rejected? Topic of research not trending, not impactful. ये कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि for the journal also their business is important.
कि वो उसको प्रॉपर ऑडियंस मिल रहा है कि नहीं, ऑडियंस आर लाइकिंग द कंटेंट और नॉट, राइट. देन पुअरली रिटन एब्स्ट्रैक्ट, लैंग्वेज एरर्स. एक टाइटल अगर मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, मैं उसका एब्स्ट्रैक्ट भी शायद ना पढूं. दिस इज वेरी कॉमन साइकोलॉजी. देन व्हाट कैन हैपन? टू मेनी irrelevant self citation. Okay. But does that mean कि हम self cite नहीं कर सकते अपना ही पेपर? कर सकते हैं if it is an extension of my work and as significant as I think, right? लेकिन मेरे सपोज 50 पेपर है, मैंने 50 पेपर्स को साइट करना है. एडिटर्स आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यार ये साइट करने के लिए इन्होंने घुसाया, तो तब प्रॉब्लम हो जाता है, वो एथिकल क्वेश्चन आ जाता है वहां पे. देन पुअर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटेशंस. पुअर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो सपोज यहां आपने कोई प्रोजेक्ट किया, दैट ओनली डिफाइंस द रोहिणी एरिया. इसका ग्लोबल कवरेज अगर बढ़ाएंगे, द डेटा विल बिकम मोर ऑथेंटिक. तो दैट इज द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया. से फॉर, लेकिन कुछ जगह इट स्पेसिफिकली डिपेंड्स ऑन वर्क टू वर्क ऑल्सो. अब मान लीजिए कि मैं एक तरह का डिजीज होता है बीटा थैलेसीमिया, जेनेटिक. अब बीटा थैलेसीमिया में मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? अफ्रीका में बीटा थैलेसीमिया हो रहा है जो कि लोगों को मलेरिया से बचाता है. वो एक ज्योग्राफिकल पैटर्न है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है. इंडिया में बीटा थैलेसीमिया जो ई पैटर्न है वो ईस्ट में ज्यादा मिलेगा. तो वहां पे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, रीजनल स्टडीज हैं. लेकिन जो कॉमन वर्क होता है वहां पे जितना बड़ा ग्लोबलाइजेशन हम कर सकते हैं, जितना डाइवर्स रीजन से हम टॉपिक उठा सकते हैं, उतना बेटर, उतना स्ट्रांग होगा. रीसेंट और ओल्डर आर्टिकल्स नॉट साइटेड. भाई रीसेंट तो हम साइट करते ही हैं, ओल्डर की बात कही है इन्होंने. ओल्डर क्यों साइट करना है? एनी गेस, एनी आइडिया व्हाई ओल्डर आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट? Yeah, man. Actually, it helps to connect the dots and makes our story much more authentic. कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, हवा की बात नहीं है. कोई भी एक इन्वेंशन है तो उसके पीछे का एक बैकग्राउंड है, उसके पीछे सोसाइटल नीड्स हैं. लीडिंग साइंटिस्ट टॉप जर्नल आर्टिकल्स आर नॉट साइटेड. ये भी एक कारण हो सकता है. जैसे वो स्पेस साइंस वाली मैंने बात बताई, अगर मैं किसी ऐसे लैब का वर्क मैं साइट करता हूँ जो कि नाम किए हुए हैं, तो वहां पे एडिटर का काम इजी हो गया. तो फाइनली करना क्या है? ओके, लेट्स ट्राई टू डेवलप ए मैन्युस्क्रिप्ट एंड लेट्स सी व्हाट आर द निटी-ग्रिटीज इन्वॉल्व्ड. हमारे एडिटर्स के साथ डिस्कस करने के बाद कुछ 6-7 पॉइंट्स मिले. क्या है? थिंक बिफोर राइटिंग. आप डिबेट कर सकते हैं, अरे यार बिना सोचे कौन लिखता है, और कोई सोच के ही लिखता है. What it means actually is think not as a author, think as a reader before you write. Choose the right journal and article type. मेरा वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डिसेमिनेशन के टाइम पे मैंने जर्नल अच्छा चूज नहीं किया, या बहुत अच्छा जर्नल चूज किया जहां पे मेरा ऑडियंस ही नहीं है, दोनों केस में ठप. मैंने अगर बहुत अच्छा काम किया, मैंने नेचर सिलेक्ट कर लिया, नेचर जर्नल, लेकिन वहां पे मेरा ऑडियंस अगर नहीं है तो मेरे आर्टिकल को साइटेशन नहीं मिलेगा. दिस में एंड ऑन द अदर हैंड, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, हो सकता है कि उसका लोकल डिसेमिनेशन ज्यादा हेल्पफुल हो, कि मेरे ऑडियंस लोकली इतने हैं, वो टॉपिक लोकली इतना इंपॉर्टेंट है कि इट विल गिव मी इमेंस रीडेबिलिटी एंड साइटेशंस. दैट इज इंपॉर्टेंट. राइट जर्नल तो हुआ, करेक्ट जर्नल भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आते हैं थोड़ा सा, उसमें भी आएंगे बीच में. यूज द राइट प्रोसेस टू राइट पेपर, ठीक है. लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. ओके, लैंग्वेज में भी आ जाएंगे कहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इंश्योर पेपर इज अप टू डेट एंड इन द राइट कंटेक्स्ट. हमने लेटेस्ट एडिशंस की बात की. देन यूज द करेक्ट आर्टिकल स्ट्रक्चर. We have a fair idea of what the article structure is, but we will still have a glimpse of those. Be prepared for common questions for reviewers.
तो ठीक है, think before writing we have already discussed what it means. If you are ready to publish, a strong manuscript is what you needed. Strong manuscript में क्या आएगा? It must have a clear, useful, exciting message presented and constructed in logical manner. Reviewers and editors can grasp the significance easily. ये important है. Choosing the right journal. ठीक है, journal there is a कुछ दूसरे पब्लिशर्स का उनका अलग प्लेटफॉर्म होता है. हमारा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज जर्नल फाइंडर. अगर आप सर्च करें एल्सेवियर जर्नल फाइंडर, यू विल, इट इज अ फ्री टूल. इट विल गिव यू, when you put your abstract there and make search, it will give you a list of journals where it gets fit. Open access, subscribe, options to choose are there. किस जर्नल में कितना टर्न अराउंड टाइम है, कितना उसका आर्टिकल पब्लिशिंग कॉस्ट है या फ्री है, उसका रिव्यू टाइम कितना है, ये सारा डेटा आपको चाहिए होगा बिफोर यू सिलेक्ट अ जर्नल. सो दैट इज इजीली अवेलेबल जर्नल फाइंडर. नॉट ओनली दैट, आपने सुना होगा कि डिस्कशंस में कि जो जर्नल है इट शुड बी स्कोपस इंडेक्स्ड. वी हैव हर्ड दैट. स्कोपस इंडेक्स मतलब क्या हुआ? मतलब स्कोपस में एंट्री है उसकी. इतना स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है कि इवन हमारे एल्सेवियर जर्नल्स भी स्कोपस इंडेक्स से बाहर हो जाते हैं व्हेन दे डोंट फॉलो द नॉर्म्स. तो आप देखेंगे व्हेनेवर इतने के लिए आपको स्कोपस सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है टू फाइंड वेदर द जर्नल इज इंडेक्स्ड और नॉट. सो व्हेन यू गो एंड सर्च फॉर अ जर्नल इन द स्कोपस, it will give you from to present. To present अगर लिखा रहा है मतलब it is still existing, then you can choose it. बाकी अगर उसने लिखा है कि 2018 से लेके 2022 मतलब 23 में नहीं है, उसको मत सिलेक्ट कीजिए. फिर आपका आर्टिकल स्कोपस इंडेक्स नहीं होगा. जो टू प्रेजेंट तक होगा उस समय आपने अगर पब्लिश किया है, बाद में निकल भी जाए वो किसी वजह से, still it will be counted as Scopus index, your article. ठीक है. Do not submit manuscripts to more than one journal at a time. ये unethical practice में आ जाता है. लेकिन sometimes what happens that we are hard pressed because of the time. हमने गलती से ऐसा जर्नल चूज कर लिया जो डिसीजन देने में 10 महीने लेगा. अरे मेरा तो इधर प्रोजेक्ट डेडलाइंस हैं, या मान लीजिए कि पीएचडी डेडलाइन है. तो इसलिए जर्नल फाइंडर व्हेन यू यूज इट, सिलेक्ट दोज क्राइटेरियाज. कितना टर्न अराउंड टाइम है, टैग कितना है, वो इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए मेरा अगर क्राइटेरिया है कि टॉप 10 जर्नल्स, ठीक है, मैं 9 में सबमिट कर दूंगा. अगर वो 4 वीक में रिजल्ट देता है तो इट्स ओके. चेक इफ यू हैव fallen prey to predatory journals. ये इंपॉर्टेंट है. देखिए हर चीज का एक प्रोज एंड कॉन्स है. इंस्टीट्यूशनल मैंडेट्स होती हैं, फंडर्स मैंडेट होता है, इतना पेपर चाहिए ही चाहिए, तभी हम आपको ये प्रोजेक्ट फंड कर देंगे. प्रोजेक्ट इज गुड, ठीक है. या ओपन एक्सेस में ही पब्लिकेशन करना है, एक पेपर चाहिए साल में या 2 पेपर चाहिए. दीज आर इंपॉर्टेंट टू व्हेन ग्रोथ इज रिक्वायर्ड. बट क्या होता है when we are under pressure to fulfill that, तब हमारी नजर पड़ती है गूगल करने पे ऐसे जर्नल्स पे, आप इतना पैसा दीजिए, गेट पब्लिश्ड इन 24 आवर्स, इन 48 आवर्स, इन 72 आवर्स. बी वेरी केयरफुल. दीज कुड बी द प्रेडेटरी जर्नल्स. इनके आप साइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उसका कंटैक्ट पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ gmail.com है उसका कंटैक्ट पॉइंट, रजिस्टर्ड नहीं है प्रॉपरली. स्कोप ऑफ दोस काइंड ऑफ जर्नल्स इज ह्यूज. वो इकोनॉमिक्स से लेके हाई एंड क्लिनिकल तक सब कुछ पब्लिश कर रहा है. ऐसा नहीं होता है, इतना बड़ा स्कोप नहीं होता है. इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ प्रेडेटरी जर्नल. डोंट फॉल प्रे टू दोस कि वो पैसा लेगा पब्लिश कर देगा. उससे क्या होता है, हमारी धारणा गलत बन जाती है कि यार ओपन एक्सेस वाले पैसा तो लेते हैं,
सिर्फ पैसा ही उनका मकसद है, ऐसा नहीं है। स्कोपस में भी एक साइकिल चलता है कि हम ढूंढ ढूंढ के निकाल के बाहर करते हैं, बट बी अवेयर, ऐसे कुछ साइट्स हैं, आई कैन सेंड यू विच विल हेल्प यू टू स्क्रीन आउट कि ओरिजिनल साइट का नाम क्या है और प्रीडेटरी साइट का नाम क्या है। सिमिलर लुकिंग होगा, आप पहचान नहीं पाएंगे अगर इन जनरल अगर देखेंगे तो। आई विल गिव यू द साइट्स, यू कैन फॉलो दो साइट्स टू स्क्रीन आउट व्हेन यू आर स्क्रीनिंग जर्नल। उसका देख लीजिए कोई प्रीडेटरी साइट तो नहीं है, दैट विल हेल्प। चलिए यहाँ मिल गया साइट, स्कोपस में भी पता लग जाता है। बीएल्स लिस्ट इज वन, जहां पे आप ढूंढ सकते हैं कि आपके जर्नल का लेजिटिमेट साइट कौन सा है, इलेजिटिमेट साइट कौन सा है, साइड बाय साइड। देन देयर इज थिंक, चेक एंड सबमिट, दैट यू कैन डू। अच्छा, एक क्रॉस रेफ है, क्रॉस रेफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्रॉस रेफरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने जो रेफरेंस सिलेक्ट किया है, जिसके बेसिस पे मैंने लिटरेचर सर्वे को बनाया है, वो रेफरेंस तो प्रीडेटरी में से नहीं था, अदरवाइज मैं वो कंटेंट को भी वीक कर दूंगा, अपने ही कंटेंट को। तो अपने रेफरेंसेस को भी चेक करें क्रॉस रेफ के जरिए। चूज द राइट जर्नल एंड आर्टिकल टाइप, दिस इज ओके, journalfinder.elsevier.com, यहां पे आपको मिलेगा दैट वी डिस्कस, ठीक है। 7 key questions to consider. Is the manuscript the right fit for the journal? Are there any funder institution mandates? Is the journal visible in the communities you want to reach? Audience क्योंकि important है. It doesn't matter whether the movie releases in an OTT or a movie theater. जहाँ पे आपको audience ज़्यादा मिले, go there. Then is there a reasonable chance of acceptance? हाँ, ये भी आपको मिलेगा, acceptance rate। जर्नल फाइंडर में जो आप देखते हैं या किसी भी जर्नल होम पेज में जाते हैं, जर्नल के बारे अबाउट द जर्नल, तो जर्नल एक्सेप्टेंस रेट अच्छा है, जर्नल बहुत अच्छा है, एक्सेप्टेंस रेट विद इन 10%। टॉप 10 में और आपने जर्नल ढूंढे, 8वें 9वें वाला मान लीजिए जर्नल जो है जिसका एक्सेप्टेंस रेट है 45%, आई विल गो विद 45%। मैं अपने चांसेस प्रोबेबिलिटी क्यों लूज करूंगा, बिकॉज माई टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर वो पड़ा रहेगा, आई विल नॉट बी एबल टू सेंड इट टू एनी अदर जर्नल इन केस इट गेट्स रिजेक्टेड, टिल इट गेट्स रिजेक्टेड, ठीक है। यूज द राइट प्रोसेस टू राइट ए पेपर। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, बहुत डिटेल पे अभी नहीं जाता हूँ। क्या है, प्रिपेयर एन आउटलाइन टू स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट। इस दौरान हम बहुत ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज की चिंता नहीं करते, राइट। वट वी कलेक्ट ऑल द डेटा, समराइज देम, पुट इट एंड सिलेक्ट द रेफरेंसेस। सेकेंड, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट भी लिखिए जिस भी तरीके से आपको समझ में आ रहा है, बट while writing think as a reader, then read your first draft and add notes. Read it as a critical reader, not as an author. Use the right process to write a paper. Process में क्या आ जाएगा, ये rewrite and improvement में फेज आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग चले तो read your first draft में आया, then rewrite and improve. Rewrite and improve में क्या है, revise the text, improve the order, identify the gaps. We all know it, right? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ भी क्या आया था, I will share one experience. Just before submission of my thesis, PhD thesis, I gave it to my wife. मैंने कहा यार मेरी तरफ से फाइनल है, तुम एक बार चेक करो, मुझे अगले दिन सबमिट करना है, मतलब प्रिंट में देना था उसको सबमिट करने से पहले। तो वाइफ ने कम से कम 500 जगह पे रेड मार्क कर दिया। मैंने कहा ये क्या किया तुमने? मैंने कहा तुम्हें दिख नहीं रहा है? एक्चुअली आई एम लुकिंग एट इट डेली, मेरा माइंड सैचुरेट हो चुका है। समटाइम्स साइकोलॉजिकली देखिए क्या वर्क कर रहा है, यू गिव इट टू सम न्यूट्रल पर्सन, दे फाइंड आउट मोर मिस्टेक्स देन वी कैन। थोड़ा सा बाद में आता है बट मुझे याद आया तो मैं बता देता हूँ। आजकल तो एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। Who is using chat GPT for writing mails among the audience? Or maybe some creating some good paragraphs? अरे खुल के मतलब मैं खुद करता हूँ, but I will tell you
what is important in that? करते हैं, ट्राई किया है ChatGPT किया होगा, that's good. ट्राई किया है means you are updating yourself with the time, और करना भी पड़ेगा आगे. प्रॉब्लम क्या है? मैंने एक बार ट्राई किया, मैंने कहा व्हाट आई हैव हर्ड लेट मी वेरीफाई. ऐसे टॉक्स में भी काम आ जाता है वो. मेरा अपना एक्सपीरियंस है. मैंने छोटा सा राइट अप ट्राई किया विद रेफरेंस, और इतना सुंदर लिख के दिया मुझे एआई ने, एंड सर मानेंगे आप, बढ़िया से रेफरेंस कोलेट करके दे दिया. मैं सोचा थिंग्स कैन नॉट बी सो इजी. खैर मुझे अपना लक भी पता है ना, तो मैं चेक करता हूँ, लेट मी वेरीफाई विद 1 or 2 रेफरेंसेस. मैं एक रेफरेंस उठा के जब गूगल किया, सोचा जर्नल तो मिल रहा था, ऑथर नहीं मिल रहा था. ऑथर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. जर्नल मिल रहा था, पेज नंबर जो दिया हुआ है वो पेज नंबर पे तो बीच का कुछ टॉपिक है, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर है ही नहीं. फिर मैंने सारे चेक किए, 15-20 जो रेफरेंसेस है, सबका वही हाल. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस why even in Elsevier papers got rejected. ये एक बहुत बड़ा रीजन है. कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, बर्बाद हो गया सारा मेहनत. एंड देन व्हाट हैपेंस, एक और चीज है, दैट किल्स द ओरिजिनलिटी. सो एज ए टीचर आप समझेंगे, मान लीजिए यू टेल मी नितिन कि तुम जरा इन सब टॉपिक्स में ना मुझे, यू गिव मी सम राइट अप्स, आई विल राइट इन माय ओन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड गिव इट टू यू. इन अ फ्यू टाइम्स ऑफ राइटिंग यू विल अंडरस्टैंड. 20 में से भी अगर ये आर्टिकल आ जाएगा ना, यू वुड अंडरस्टैंड कि ये राइटिंग स्टाइल नितिन का है. When ChatGPT writes for you, इतना एक्यूरेसी आ जाता है कि आप फिर वो भी समझना शुरू कर देते हैं. सर्टेन वर्डिंग्स ऐसी वो यूज करता है कि यार ये ChatGPT का है. तो एक आइडियल यूज. हाँ, जब ब्लैक रिपोर्ट में भी हम देखते हैं कि एआई को कैसे ट्रेस कर रहा है, उसमें वो यही कमेंट कर रहा है कि आप अगर कोई चीज रिपीटेडली यूज हो रही है या फिर वही मतलब यू नो बिल्कुल एब्सर्ड रेफरेंसेस है, तो उसी के बेसिस पे हमारे टर्निटिव में एआई का ब्लैक इसीलिए ऐसे ही दिख रहा है. ओके, उसमें कमेंट आता है. so there are pros and cons. वे informed decision लीजिए then use it. हाँ, when I use it, अभी personally, suppose I'm hard pressed, I have to write something. टिपिकली एकदम लिटरेचर वे में मेरे पास डिक्शनरी रखी है, बट अभी खोलने का टाइम नहीं है, सारा डिक्शनरी के साथ बैठे हैं, तो आई गेट दैट हेल्प. राइटअप तैयार हो गया, उसके बाद पूरा एडिट करता हूँ. मीन्स आई एडिट द ChatGPT कंटेक्स्ट. और कई बार देखता हूँ कि व्हाट आई एम थिंकिंग ChatGPT ने बिल्कुल ऐसा लिख के नहीं दिया, जस्ट उसका ऑपोजिट. तो बहुत ही ध्यान से उसको यूज करना पड़ता है. वेल, language editing services available हैं. If you are very hard pressed with time and certain skill set challenges, so of course that can be used. Yes, language में एक चीज important है कि write short and direct sentences. ये बहुत important है. क्यों? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ लॉन्ग सेंटेंस का. In the highly regulated and aseptic laboratory setting, characterized by its stringent adherence to protocols, it is of paramount importance to delicately and precisely position each 50 ml conical tube horizontally within a pre-warmed orbital shaker, thus facilitating the creation of an ideal and uniform environment for the execution of the critical process which hinges on the orchestration of each step. एडिटर बोलेंगे जयराम जी की, रिजेक्ट. करना क्या है? सिंपल सेंटेंस. प्लेस ईच 50 ml conical tube horizontally in a pre-warmed orbital shaker. बात ही पता है. ना शशि थरूर बनना है, ना शेक्सपियर बनना है. हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? यूज प्रेजेंट टेंस फॉर नोन फैक्ट्स एंड हाइपोथेसिस, जो लास्ट सेकंड लास्ट सेंटेंस. यूज पास्ट टेंस फॉर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स.
Eliminate redundant phrases, abbreviations, unnecessary. First step में हम abbreviation नहीं घुसाते हैं, उसको कहीं पहले explain करते हैं. कोशिश करते हैं कि खुद से हम abbreviation invent ना करें. जो standard abbreviations हैं उनका use करें. Okay. Manuscript language tense. Okay. ये हमने देखा use of tense कहाँ कहाँ क्या करना है. Abstract and summary में past tense generally use होता है. Introduction में present and so on. राइट डायरेक्ट इन शॉर्ट सेंटेंसेस, ये हमने बात की एक एग्जांपल के जरिए. और देखेंगे कि आज की डेट पे एवरेज लेंथ ऑफ सेंटेंस इन साइंटिफिक राइटिंग इज अबाउट 12 to 17 वर्ड्स. ठीक है, सो अवॉइड मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन वन सेंटेंस. मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाना है, सिंपल टू द पॉइंट, क्रिस्प. एंश्योर द पेपर इज अप टू डेट एंड इन राइट कंटेक्स्ट. ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट वी हैव कवर्ड. रेफरेंस लिस्ट एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एन एडिटर विल टेक ए लुक एट योर रेफरेंस. हमें लगता है कि बाईपास होगा, नहीं. क्या क्या देखेगा एडिटर? आर द रीसेंट पेपर्स इंक्लूडेड और नॉट? आर पेपर्स फ्रॉम टॉप जर्नल्स आर इंक्लूडेड नॉट? आर लीडिंग साइंटिस्ट साइटेड और नॉट? मतलब साइंस है तो साइंटिस्ट, सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स. Are there too many self citations? Relevant self citations है या नहीं? Are references internationally distributed? ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी. एक अच्छे जर्नल के लिए ये इंपॉर्टेंट है. Use the correct article structure. This is we have a fair idea of, right? अब कोई भी पेपर हम ओपन करते हैं तो what we get? Title, authors, abstract, keywords, starting with it. तो टाइटल में जनरली क्या है? कंसाइज है, इंफॉर्मेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, इंक्लूडिंग मेन फाइंडिंग्स. वी हैव द ऑथर्स, वहाँ पे आप प्रॉपरली जस्टिफाई कीजिए सबको. देन एब्स्ट्रैक्ट है, विच शुड बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग द एडिटर्स डिसीजन, समराइज्ड बट गिव सफिशिएंट डिटेल्स, इजी टू अंडरस्टैंड. सीधा सीधा बोले तो गागर में सागर भरना है तो एब्स्ट्रैक्ट इज द प्लेस. एंड इट इज द टफेस्ट थिंग टू डू. मुझे आज भी थोड़ा सा कठिन लगता है कि यार क्या लिखे क्या नहीं लिखे, ताकि एडिटर का अट्रैक्ट भी कर सकूं, सारी इंफॉर्मेशन भी दे सकूं. एंड आई अवॉइड बाय द वर्ड लिमिट्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो. ये कहाँ लिमिटेशंस जो है वेयर आई विल गेट? किसी भी जर्नल के स्कोप में जाएंगे, गाइड फॉर ऑथर्स रहेगा, देयर विल गेट. सब जर्नल का थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस में ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग है. Then use the correct article structure में और क्या है? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा? Why did you do? इस चीज को हम आंसर करते हैं. जहाँ पे हमारा मेन लिटरेचर सर्वे काम आता है, सपोर्ट करते हैं, राइट. देन मेथड्स, इफ देयर आर एनी मेथडोलॉजी, व्हाट इज दैट? तो हो सकता है कि नॉन साइंस सब्जेक्ट्स में मोर ऑफ स्टैटिस्टिक्स शायद इन्वॉल्व होती हैं, दैट यू ऑल नो बेटर इन टर्म्स. आई कैन टेल अबाउट द science mostly. Then provide sufficient information, identify the equipment if there are any. Then results and discussions. What did you find? ये answer होगा. Whatever possible data are there, you give it. Then conclusions. How does your study advance the field? Short and clear. Justify your work. But इसको past tense ना करें, क्योंकि conclusions में देखेंगे generally we have to leave it open-ended. Any research is not closed. You have to leave it open-ended. Use the correct article structure में अगला क्या है? Acknowledgements. ठीक है. We acknowledge the parties who have helped us, supported us with funds. Likewise, जिन्होंने भी जो help किया है. Then references. But unlike the PhD thesis वाला नहीं. वहाँ पे तो हम जहाँ जाके जिस शॉप में चाय पीते थे, जो हमें 5 साल खाना खिलाया, उसको भी थैंक दे देते थे. वो नहीं करेंगे हम. रेफरेंसेस में क्या है? डूज एंड डोंट्स. रीसेंट वर्ल्ड वाइड रेफरेंसेस यूज हो. मेक श्योर यू fully understand, use style given in the guide for authors, and what not to do is excessive self citations. ठीक है, supplement information if any, means additional कुछ data है तो that you can always given.
Okay, common questions to include comment on importance, validity, generality of conclusions. ठीक है, मान लीजिए कि एडिटर को आपका काम पसंद ही आया, उसके बावजूद ये कॉमन क्वेश्चंस को पूछेगा ही जस्ट टू एक्सपेरिमेंट हाउ यू डिफेंड योर वर्क. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आते ही हैं, डज द टॉपिक ऑफ द पेपर फिट विद इन द जर्नल? कब नहीं आएगा? व्हेन यू हैव फॉलन प्रे टू ए प्रेडेटरी जर्नल. आपने 6,000 10,000 रुपए जमा कर दिए, अब वेट करना है सिर्फ पब्लिश होने, तब नहीं आएगा, तब वो काम का भी वैल्यू खत्म. Are the experiments correct? Can they be repeated based on description? Comment on need and quality of the tables, figures, etc. Are the results well presented and analyzed? Is research put in appropriate context or not? And are the references accurate, up to date, balanced and accessible? ठीक है, submitting a manuscript में क्या important है? Okay. Nowadays एक चीज काफी पॉपुलर है, राइटिंग ए गुड कवर लेटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मौका मिला तो छोड़िए मत. दैट इज वन अपॉर्चुनिटी टू कन्विंस द जर्नल एडिटर दैट दे शुड पब्लिश योर स्टडी एंड व्हाई. मैं आपको इसका मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, वेयर जनरली यू विल फाइंड द फॉर्मेट. एक छोटा सा फॉर्मेट है कि कवर लेटर में क्या स्ट्रक्चर होता है, ये कैन डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. Okay, editors has 3 decisions: accept, reject or accepted with minor or major revisions. That is fine. Publishing ethics में what is important? इनके गाइडलाइंस अगर जानना चाहते हैं और डिटेल में तो COP is there where you will find the details. COP is a website, an institution that deals with all the publication ethics. publicationethics.org में आपको मिलेगा सारा इंफॉर्मेशन. इन जनरल मल्टीपल सबमिशंस, improper author contribution, मतलब होती है ना कई बार शिकायतें आती हैं, ग्रीवियंसेस होते हैं, अनहर्ड, यार मेरा नाम तो दिया ही नहीं, मुझे तो सेकंड में तो एटलीस्ट देना चाहिए था, मुझे लास्ट में दे दिया. तो वी हैव सीन ऑल. आप लोगों ने देखा सुना होगा, हमने भी देखा ही है. तो वो चीजें अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर रही है, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द एडिटर टू एक्सेप्ट इट. Unethical publishing behavior also includes data fabrication and falsification and plagiarism. तो plagiarism तो हमने सुना है. Plagiarism के बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं that you can use and appropriately make it noise free. क्या अवॉइड करना है कि कभी हमारे साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वो आर्टिकल गायब नहीं होगा डिजिटल मीडिया से. वो हमेशा किसी ऑथर के नाम के साथ यू रिट्रैक्टेड लिखा आ जाएगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा. तो ऐसा कभी ना हो, ये हमारी कोशिश है. देन कम्स इन प्रोमोटिंग योर पेपर. द प्रमोशन विल आल्सो हेल्प यू टू इंक्रीज द प्लमेक्स मैट्रिक्स ऑफ योर आर्टिकल. तो जितना आप उसको प्रमोट करें, कोई अच्छा पेपर पब्लिश किया है, लिंक्डइन में पोस्ट करें, अपने ग्रुप में पोस्ट करें, लेट पीपल रीड एंड कमेंट अबाउट इट, let them also propagate further. So more you promote it, more it will improve the citation chances. और ID अगर किसी का नहीं है तो बना लीजिएगा. मेरे साथ क्या घटा, N घोषाल जैसे लिखते हैं ना, N घोषाल या घोषाल.N, किसी पेपर में नितिन घोषाल. तो एक और N घोषाल है, बड़े साइंटिस्ट हैं, वो तो पता नहीं कितने हजार पेपर पब्लिश कर चुके हैं. मेरे पास हर बार आता है, आर दीज योर पेपर. मैंने कहा यार कितने साल हो गए रिसर्च छोड़े हुए, अब क्यों आ रहा है? तो देन आई डिस्कवर्ड कि ये एन घोषाल बड़े साइंटिस्ट है, उनका है. देन आई प्रॉपरली अपडेटेड माई ऑर्ग आईडी एंड लिंक्ड इट टू स्कोपस. और मेरे जो 5 पब्लिकेशन है जो रिसर्च के टाइम पे दौरान के हैं, उनको मैंने लिंक कर दिया. अब नहीं आता मेरे पास, कोई डुप्लीकेसी का इशू नहीं है. दिस इज जस्ट लाइक पैन और आधार कार्ड नंबर.
तो ठीक है, this is to summarize. Think before writing, choose the right journal and article type, use the right process to write paper, language is important, ensuring short sentences वो भी important है, ensure paper is up to date and in the right context, use the correct article structure, be prepared for common questions to reviewers, write a good cover letter, revisions के दौरान address all the comments from reviewers, also if you disagree, then obey publishing ethics, promote your own paper. This is important. Okay. So this is how you get the acceptance finally. Now it's 12:41. थोड़ा basics Mendeley का भी मैं include I करूँ. think they are waiting for Mendeley section. Oh, great, great. So any questions till now? Did you find it useful? In a short and crisp way, it will definitely improve. वो सत्संग की तरह है, जिसमें लोग जाते बार-बार हैं, लेकिन जाके फिर गलतियाँ फिर वही कर देते हैं कई बार. So it is important to attend these pointers. Okay. So Mendeley, how many have already used it? Good. What it is actually? अच्छा तो मैम आपने यूज किया ना, आप थोड़ा बताइए ना कि Mendeley why it is used. So when I initially used it only for collating all my literature review papers there and then to cite those papers. I mean, I was storing it there and then I was collating it. That was the initial usage. But then I got to know it has multiple uses afterwards as well. Great, great, great. आपने भी यूज किया है मैम? Yes, sir. आपका क्या वर्क रहा Mendeley के So, साथ? मेरा मेंडले में यही वर्क रहा बिब्लियोग्राफी कोलेट करने के लिए अपने पूरे रिसर्च पेपर में जहाँ जहाँ मैंने रेफरेंसेस यूज की थी वो कोलेट हो गई ऑटोमेटिकली. सो टाइम सेविंग था मेरे लिए, यही मुझे समझ आया था इनिशियली. मेरे टाइम में मैंने एंड नोट यूज किया था, और वो भी पायरेटेड. अगर ही नहीं था कि Mendeley भी है. और सबमिशन से कुछ दिनों पहले एंड नोट क्रैश कर गया मेरे सिस्टम पे, और सारे जो रेफरेंसेस थे इट ऑल नहीं उड़ा कुछ नहीं, सारे रेफरेंसेस कन्वर्ट हो गए 0-1 बाइनरी सिस्टम में. मेरा 500 पेज का थीसिस मोर देन 2500 पेज का बन गया उसकी वजह से. मुझे समझ नहीं आया करूं क्या. मेरे साथ होता रहता है मैम इस तरह का ना. आज भी देखिए सुबह क्या हुआ, मैं 1 घंटा लेट हो गया. वो तो पायरेसी के साथ तो देखिए कौन सी जुड़े हुए हैं ज़्यादा. Way back in 2013. Okay. So Mendeley, thank God, it is free of cost. इसका पेड वर्जन भी है, एनीबडी नोस है. उसका पेड वर्जन में क्या होता है, इसमें जैसे क्या क्या आप कर सकते हैं. You can manage your references that you already have an experience with, few of them, and then you can read and annotate PDFs. You can cite research while writing and collaborate. ये 4 चीजें कर सकते हैं. तो कोलैबोरेशन का जो इसमें खेल है, वहाँ पे ग्रुप्स बनाने का ऑप्शन है. से फॉर एग्जाम्पल मैम आपने अगर डिफरेंट डिविजन्स का डिपार्टमेंट्स का ग्रुप बना दिया, एंड इफ यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, सो आप क्या कर सकते हैं, एवरी ग्रुप में यू कैन ऐड 25 मेंबर्स. मे बी मान लीजिए कि एवरी PI प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हैज हिज लैब मेंबर्स इनटू दैट ग्रुप. टोटल 100 तक तो हो जाएगा. उसके आगे अगर आपको नंबर बनाना है देन द पेड ऑप्शन. So in the reference management suite, how do we see it in a broad way is we have a Mendeley reference manager, then Mendeley site and Mendeley web importer. क्या रोल है? इंस्टॉल कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है. इंस्टॉल कैसे करेंगे जिन्होंने नहीं किया है,
go to mendeley.com, then create your account, free account, and then वो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है. It will download the desktop app for you. इसका वेब ब्राउजर भी सिमिलर है. Exactly what you see in the desktop app is exactly what is in the web browser also. Say for example, if you are seeing it in your tab, क्लाउड से जुड़े हुए वेब ब्राउजर में आपने टैब में वर्क कर लिया, आप आए वापस ऑफिस में लैपटॉप में या डेस्कटॉप में बैठ के आप डेस्कटॉप ऐप पे वर्क कर सकते हैं. देयर इज अ सिंक कैपेबिलिटी, बस सिंक प्रेस कीजिए, दोनों डेटा बराबर हो जाएगा, wherever whenever you use it. Then Mendeley रेफरेंस मैनेजर आप डाउनलोड करेंगे. द साइट इज गिवन और सिंपली यू कैन यूज अ वेब वर्जन यहाँ पे. ठीक है. Then when you install it, you will get these desktop app. जब इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे देखिए आपको वर्क क्या है. When you are writing your article on the Word document, आप चाहते हैं कि वहाँ पे मुझे प्लगइन मिल जाए Mendeley साइट का, ताकि मैं जहाँ पे जो साइटेशन फीड करना चाहता हूँ वहाँ पे कर्सर ले जाके साइटेशन को Mendeley साइट प्लगइन से उठा सकें. तो Mendeley साइट इसलिए हम सूट देख रहे थे जो यहाँ पे था ना, या मिडल वन. ये प्लगइन जो है वर्ड में काम आएगा. देन देयर इज अ वेब इंपोर्टर, Mendeley वेब इंपोर्टर लास्ट में. मतलब वेब इंपोर्टर का मतलब हुआ कि if I am on Science Direct, I am searching for something, and I got this paper, open access लिखा हुआ है, मतलब अवेलेबल है. ठीक है, I can directly add it to Mendeley from here. क्यों ऐड होगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे देखिए अपर राइट में देयर इज ए वेब इंपोर्टर इंस्टॉल. तो ये दो चीजें आपको और इंस्टॉल करनी है. ऐप हो गया, तीन चीजें. ऐप जिसपे मेन आप वर्क करेंगे या वेब ब्राउजर पे का वर्क कर रहे हैं. दूसरा है Mendeley साइट, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे साइटेशन इंपोर्ट करनी है. और तीसरा है डायरेक्ट में यहाँ से भी कम से कम लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर सकूँ. तो सर इट विल डाउनलोड दीस डिटेल्स और द पेपर वुड बी डाउनलोड भी ओपन एक्सेस था जैसे पेपर. हाँ, पीडीएफ नहीं होगा, इसकी डिटेल्स एब्स्ट्रैक्ट वगैरह ये सब चले जाएंगे. हाँ, तो इसमें मैम क्या होगा कि व्हेन सपोज पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, हाँ, तो इट विल इंपोर्ट द साइटेशन इंफॉर्मेशन ओनली. ऑटोमेटिकली विल डू एब्स्ट्रैक्ट. या ऑटोमेटिकली नहीं. Suppose I am clicking add to Mendeley. It will now, it is signing into Mendeley web promoter. Importer, sorry. Importer में जा रहा है. और ये यहाँ पे exactly वो जो वेब ब्राउजर है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है. और लाइब्रेरी में इसको ऐड करने का मुझे ऑप्शन दे देगा. अब क्या होता है कि जिसका पीडीएफ है लेकिन मैंने उस समय सिर्फ साइटेशन इंफॉर्मेशन ही डाउनलोड की है, तो मुझे Mendeley में दिखाएगा कि पीडीएफ इज रेडी टू डाउनलोड. आई कैन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर आई नीड, आई कैन क्लिक द पीडीएफ इज रेडी टू डाउनलोड ऑप्शन टू डाउनलोड द पेपर आल्सो, so that I can read it also on the Mendeley interface. थोड़ा स्पीड ज़्यादा मांगता है इंटरनेट का, ये इज लैगिंग अ बिट. एनीवेज, एंड सर वन मोर क्वेश्चन. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक का ऐसे एक पेपर इसमें इंपोर्ट किया, सो इज देयर एनी ऑप्शन कि उससे रिलेटेड पेपर्स भी दिखें Mendeley के डेटाबेस में, नॉट ऑन दिस वेबसाइट? ऐसा कोई डेटाबेस भी है कि नहीं? इट इज देयर Mendeley कैटलॉग. सो सपोज मैं ओपन कर लेता हूँ इसको. ओके,
ये देखिए आई हैव अपलोडेड 3, अच्छा ठीक है, सॉरी papers. सपोज ये भी पॉसिबल है। देखिए मैंने कुछ पेपर्स पहले से डाउनलोड कर लिए थे। आई कैन डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू दिस, ये भी पॉसिबल है। एंड देन व्हाट यू आस्क मैम? So let's say for example I'm reading a paper. रीडिंग ए पेपर, ओके। So is there any database on Mendeley which will suggest me that similar these papers are also there? यही देखिए, ओके। So this is the first of all the interface, how it looks on. This is the all the references you will see here. As you add papers, you will see it here. अभी मैंने कल खाली किया है इसको, 3 ऐड किए just to see if it is working well. तो as you add more papers, ये सारे यहीं पे आ जाएंगे, right? अब मैम ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं इसको क्लिक करता हूँ. I will see the metadata of the article here. ठीक है, ये metadata मिल रहा है. मैम जो आपने पूछा है यहाँ पे Mendeley catalog, share this reference anonymously with Mendeley web catalog. So when I keep it, जनरली ये checked in ही रहता है, तो पूरे वर्ल्ड में जो भी Mendeley यूज कर रहे हैं, if they are keeping it checked, वो सारा searches उनके सब्जेक्ट का Mendeley वेब कैटलॉग में भी जा रहा है, which itself separately वेब में अगर आप देखें Mendeley search, it will open up a separate search window for you just like Science Direct. आप वहाँ पे आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, रिलेटेड सर्चेस भी आपको मिलेंगे, just like Science Direct. That is Mendeley search web पे. वो आपको शो करता हूँ. ये भी नहीं है. This is the one. यहाँ से मैं वेब ब्राउजर के लाइब्रेरी में भी जा सकता हूँ डायरेक्टली. दिस इज द सर्च ऑप्शंस, जहाँ पे अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो आई विल गेट व्हाट पेपर्स हैव ऑलरेडी बीन एडेड बाय डिफरेंट रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हियर. तो यहाँ का थोड़ा लिमिटेशन ये है कि आपको नंबर्स कम मिलेगा, क्योंकि इट इज ओनली अ डेटाबेस वेयर थिंग्स हैव बीन सर्च्ड. वो चीज़ें ऐड होंगी यहाँ पे. फिल्टर्स भी है सिमिलरली on the left side, year, document type, journal, author, etc. Okay, so where were we? हम यहाँ पे थे. All references. अब यहाँ पे देखिएगा recently added में ये 3 references दिखा रहा है. ये 30 days तक recently added में रहता है. Recently read मैंने एक भी नहीं पढ़ा उनमें से. फेवरेट्स, अभी मेरा कोई फेवरेट टैग नहीं है. फेवरेट कैसे होगा? ये अगर यहाँ में मैं स्टार दबा दूं, स्टार यहाँ पे लगा दिया, तो इट विल काउंट इन द फेवरेट्स आल्सो. ठीक है. Here you can read the whole paper also. This I was telling you, अगर फाइल डाउनलोडेड नहीं है, फाइल्स अवेलेबल फॉर डाउनलोड, एक एंड में देखिएगा एक मैसेज आ रहा है, दैट आइकन कैन बी क्लिक्ड. अगर कोई डुप्लीकेट फाइल्स ऐड हुई हैं तो वो यहाँ पे शो कर देगा. वी कैन सिलेक्टिवली डिलीट देम. अगर कुछ डिलीट करना है, दैट कैन बी फाउंड हियर. दिस इज व्हाट आई डिलीटेड यस्टरडे. नाउ यहाँ पे 2 आपको एडिशनल टैब्स दिख रहे हैं, which is collections and groups. So how the collections and groups can be used? So collections का मतलब हुआ, it depends upon how you want to interpret it. मान लीजिए कि as a PhD मैं अपने PhD के जो components हैं या chapters हैं, उनको मैं collections बना लूँ.
चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 1 में क्या क्या मटेरियल्स हैं और वो कैसे ऐड होगा। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए चैप्टर 1 ही दे देता हूँ, आप कुछ और भी दे सकते हैं। कलेक्शंस में अगर आप स्पेसिफिक नाम से उसको डिफाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इस तरह से भी यू कैन गो ऑन। It can be variables. Variables. Mainly people do it as variables. हाँ. First variable, second variable of the study. Maybe the name of that variable. Yeah, that's why I said कि it's up to you how you want to define your collections. मान लीजिए वेरिएबल है, एंटर, ये तैयार हो गया। वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 इस तरह से आएगा। अब होगा क्या, आई नो ये मेरे इसमें जाएगा वेरिएबल 1 में, स्पेलिंग गलत है, डोंट माइंड प्लीज। आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट देयर। पेपर वही है लाइब्रेरी में, जस्ट वहाँ पे वो टैग हो जाएगा। मुझे वर्क करना है तो मुझे यहाँ पे बेस्ट है इफ आई कैन वर्क, मैं वहाँ से भी वर्क कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी आई कैन वर्क, सेम चीज। सिमिलरली ग्रुप, ग्रुप में क्या है, मान लीजिए मैम का एक ग्रुप है, now what ma'am can do with this group, let's go to manage group. Now ma'am can invite her scholars there, उनका email address line by line टाइप करके मैं अपने दे देता हूँ, जैसे It's an academic social network. yeah. ठीक है। So इस तरह से line by line I can invite all my scholars and send an invite. So they will have to join this group. अब group में आ गए means through cloud now they are joined. Whatever I discuss, disseminate into this group, whatever ma'am does and share, everybody will be able to see it and respond to it. कैसे कर सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, मान लीजिए कि मैम आपने आई विल पुट दिस पेपर इनटू हियर। एकदम फुल फ्लेजेड नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वी ऑल आर नॉट जॉइनिंग इट एट द मोमेंट, अदरवाइज वी कुड हैव सीन इट। बट हाँ, इतना मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इट इज ईजियर देन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। ठीक है, लेट्स रीड इट। नाउ सपोज मैम इज वर्किंग ऑन दिस आर्टिकल and she found that there are certain things which are very much helpful for you to know. Now, how is the speed? The internet speed here? It's there. Connected to है. तो समझ नहीं आया इतना टाइम क्यों लग रहा है टॉपिक में? हॉटस्पॉट कनेक्ट करना है। तो मैं मशीन में मैं इसमें करता हूँ। मैं एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन आईपी को पहचानता है ना, तो वो रिजेक्ट नहीं करेगा। बाई चांस किसी तरह का इंटरफेरेंस वैसा अगर कि न्यू आईपी कनेक्टेड।
देखते हैं। Some emails a few participants were asking if they can get your PowerPoint presentation. हाँ, Thank you so much. okay. Speed very good. Now I've been able to open this, right? Suppose I found that there is some new information right here. Okay, I select this, highlight this, highlight कैसे होगा? राइट क्लिक पे हाईलाइट ऑप्शन पर, फिर इसको मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ. आई कैन चेंज द हाईलाइट कलर टू वॉट एवर आई विश. ठीक है, दिस इज इट. नाउ व्हाई डिफरेंट कलर्स? बिकॉज इट कैन बी टैग. सपोज अब क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं. आई कैन ऐड अ स्टिकी नोट हियर. व्हाट एल्स? इन्फो में गया, नोटबुक में गया, न्यू पेज सेलेक्ट किया. अब ये जो बॉक्स है इस पे मैं एक बार क्लिक करूंगा, ऐड टू नोटबुक. इट इज सेपरेटिंग आउट माई नोट्स. I can manually also type something and save it. ठीक है. Now what else? Annotations पे आते हैं. The major work. Suppose मैम ने अपना ग्रुप बनाया. अब मैम चाहते हैं कि इसको annotate किया जाए. Annotate मतलब हुआ I will select this. ये जो ऊपर जो क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे जहाँ पे मैं चाहता हूँ वहाँ पे इस एनोटेशन को ले आऊँगा. इस पैराग्राफ के लिए मैं बोलूँगा, से फॉर एग्जांपल मैम ने बोला नितिन मुझे एड्रेस किया, रीड एंड रिवर्ट विथ योर आइडियाज. देखिए यहाँ पे आ गया एनोटेशन में ये चीज़. कई सारे एनोटेशन हो सकते हैं. इसी तरह से दूसरा एक हो सकता है, मुझे कहीं पे कुछ और, अच्छा आई कैन डिलीट माई एनोटेशंस आल्सो. अगर एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया मैंने कहीं, आई सेलेक्ट समथिंग एल्स, हाईलाइट इट टू द चॉइस ऑफ माई कलर, एंड सपोज दिस टाइम आई एनोटेट इट. मैम एनोटेट्स इट and give it to ठीक है, आ जाएगा. सो व्हेनेवर आप ज्वाइन करेंगे इस ग्रुप को, या मैं ज्वाइन करूंगा, मुझे ये दिखेगा क्योंकि ये क्लाउड में भी सिंक है. सो आई विल जस्ट गो ऑन. ये मैंने हटा भी दिया है. तो इस ग्रुप में जब मैं चेक करूंगा तो मुझे इसमें नहीं था क्या, इस वाला नहीं, कौन सा पेपर में ऐड किया है? हाँ, मार्जिनल. So I can always see this with the message. पहले 0 आ रहा था, अपडेट हो गया है. तो I can always revert to this. क्लिक किया, I'll directly see the read, जहाँ पे मुझे रेफर करना है, क्या रीड करना है. तो ये एक ऑप्शन है इसमें. ठीक है. ये क्या चीज़ है? इन्फो, मेटा डेटा तो है ही है डेफिनेटली. अगर आपको कोई चीज़ अपडेट करना है तो जैसे ये जो लेंस आ रहा है, यू क्लिक इट हियर
इट विल अगेन रीचेक फ्रॉम द वेब कि सारा मेटा डेटा अपडेटेड है। ये इसमें पॉसिबिलिटी है। URLs, DOIs पॉसिबल है। नाउ एक इसमें और चीज़ बताऊँ आपको। अच्छा, ये शेयर ही नहीं किया इसलिए मार्जिनल वाला शेयर नहीं शेयर तो है। नो प्रॉब्लम। देन हाउ टू ऐड फाइल्स। एक ड्रैग एंड ड्रॉप का हमने तरीका देखा। ऐड न्यू फाइल्स आप कर सकते हैं फ्रॉम कंप्यूटर। आप जहाँ पे भी आपके फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे लाइब्रेरी में ऐड हो जाएंगे। रिसेंटली और क्या है, ऐड एंट्री मैनुअली। कोई DOI अगर आपने देखा, वो DOI आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, वो वेब में सर्च करके यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दे देगा, ऐड एंट्री। ठीक है, दिस इज पॉसिबल मैनुअल एंट्री में। और क्या है, इंपोर्ट फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। दूसरा कोई लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं, BibTeX, EndNote या RIS फॉर्मेट में कुछ, तो वहां से ये फॉर्मेट आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये यहाँ पे इज हाउ टू यूज द ओवरऑल प्लेटफॉर्म जो हमें दिख रहा है। नाउ आई विल टेक यू टू रिलेटिवली इजियर वर्क जो आपने पहले भी देखा है, जिन्होंने यूज किया है। सपोज आई राइट समथिंग हियर, इस चीज का प्लगइन कहाँ गया, आई विल फाइंड इन रेफरेंस कॉलम। रेफरेंस में जाएंगे तो देखिए लास्ट में मेंडले साइट ऑप्शन आ गया, दिस इज द प्लगइन। ओके, तो सपोज आई एम राइटिंग समथिंग, नाउ आई वांट द citation to be bring in here. I will click Mendeley site. जो भी लाइब्रेरी में है वहां से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। सिलेक्ट किया, इंसर्ट वन साइटेशन, डन। ठीक है, और लिखते हैं, इस पे मुझे 2 साइटेशंस देना है। सपोज सेकेंड वाला और थर्ड वाला, इंसर्ट 2 साइटेशंस, डन। ठीक है, इजी। अब और क्या करना है, चलिए राइटिंग खत्म हो गई है, सजाते हैं थोड़ा बाइब्लियोग्राफी। यहाँ पे मैं बाइब्लियोग्राफी इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू इंसर्ट बाइब्लियोग्राफी। ये जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूंगा, देन इंसर्ट बाइब्लियोग्राफी। यस, कर्सर लोकेशन पे ही इंसर्ट करना है, राइट। All the 3 references have been inserted. अच्छा, इसमें क्या है कि आप इस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं साइटेशन सेटिंग्स में जाकर। थोड़ा सा समझने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए इसको IEEE में कर देते हैं। सिलेक्ट किया, अपडेशन साइटेशन स्टाइल। अब साइटेशन स्टाइल जब चेंज हुआ, यू विल सी कि अब इसमें क्या है। देखिए IEEE में 1, 2, 3 ऐसे लिंक हो रहा है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए उसको मैंने IEEE कर दिया। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज थिंग्स हियर। कैसे, जब यहाँ पे मुझे सपोज यहाँ पे 1 जो रेफरेंस है दैट आई हैव टू डिलीट, ये मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। नीचे देखिए सीक्वेंस अपने आप ऑटो चेंज हो गया, 1 हट ही गया। तो ये पॉसिबिलिटीज इसमें इजी है, मुझे वो वापस जाके पूरा मैनुअल होमवर्क नहीं करना है, तो दैट सेव्स योर टाइम। So how did you take this Mendeley site on word paper? Could you read this? Mendeley site, how did I? एक्सटेंशन डाउनलोड किया, Extension download. उन मेनली की साइट पे है, वी डन इट एंड Sir, can these 1 and 2 be hyperlinked? I mean, कई जगह पे वो भी format, I'm not sure which format is that. जैसे जो IEEE में तो सिर्फ 1 और 2 मेंशन आया, अगर 1 और 2 जो है वो हाइपरलिंक्ड हो, उस पर क्लिक किया जाए, वो ऑटोमेटिकली नीचे नेविगेट हो जाए बिब्लियोग्राफी पे। आई थिंक वो जनरल करता है, वो जनरल करता है शायद, ऑथर नहीं करके देता, क्योंकि वो टाइप सेटिंग का फॉर्मेट नहीं। वैसे तो इंसर्ट हाइपरलिंक हम कर ही सकते हैं, वो तो एक ही करके होगा ना। हाँ। आई जस्ट वांटेड कि वो एक साथ ही अगर होता, कोई स्पेसिफिक स्टाइल होता, आई एम नॉट श्योर। वैंकूवर में भी 1 और 2 होता है,
मैन पावर मेडिकल साइंसेज के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें 1-2 होता है, लेकिन शायद आई एम नॉट दैट श्योर कि वो हाइपरलिंक होते हैं जर्नल्स में जाता है तब तो एज एन ऑथर वी कैन डू इट और नॉट, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि वो उनके पेज सेटिंग का पार्ट है वैसे, जब तो वो वही करते हैं ना, हाँ वो हाँ, करते हैं, I know। क्योंकि वो रेफरेंस की जगह ही बदल जाएगी ना अगर आप हाइपरलिंक भी करोगे, दैट ऑर्डर कैन बी चेंज, कोई रीड होगी, वो हाइपरलिंक में प्रॉब्लम ऐसी मैंने पर्सनली तो वो अभी देखा नहीं है इसमें वैसे तो हाइपरलिंकिंग, होता है। बट मैनुअल तो है, जैसा आप कह रहे हैं दैट कैन इजीली बी डन फॉर एनी रीजन इफ आई वांट टू डू इट। हाँ जी, हाँ जी, वो ब्लू कलर का हाँ हाँ, आई गॉट योर पॉइंट, नीचे आई गॉट योर पॉइंट। automatically जैसे कि आप ऑथर के नेम पे ही क्लिक करो, नीचे रेफरेंस पे ले आता है, exactly। बट वो पेपर सेटिंग का पार्ट है वैसे, वो रेफरेंस स्टाइल नहीं है। देखो कुछ जर्नल्स में होगा, कुछ जर्नल्स में नहीं होता। हाँ नहीं होता मैक्सिमम। इसमें आई वो भी है आपका ILS। ओके, सो यहाँ पे अच्छा फॉर योर सपोर्ट आल्सो, यहाँ पे अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो टू गेट सपोर्ट एंड राइट मेल्स एंड गेट योर रिस्पॉन्सेस, जो भी आपका क्वेरी है यू कैन ऑलवेज गेट टू सी व्हाट इज न्यू। ठीक है, लॉन्च साइट टूर, मतलब पूरा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है उसका वीडियो भी होगा। आपने मैम पूछा, अच्छा ये मेंडले साइट कैसे डाउनलोड करना है ये पूछा था आपने। ओके, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। Install Mendeley site, go to the Microsoft App Source, choose one। 2-3 तरीका है, आपने अब ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप वेब से डाउनलोड कर लो, ये वेबसाइट है। दूसरा तरीका है टूल्स में जाके, मतलब ये जो ऐप मेंडले रेफरेंस डेस्कटॉप ऐप है, इसके टूल्स में गए, इंस्टॉल मेंडले वेब पोर्टर एंड मेंडले साइट, दोनों के लिए ऑप्शन है डायरेक्टली। उसके बाद वो एक यूजर फ्रेंडली तरीके से आगे जाएगा, इंस्टॉल करने को बोलेगा। ठीक है, कई बार ये भी हो सकता है कि इसका एक्सटेंशन डाउनलोड्स में जाके पड़ा है, आप डबल क्लिक करें वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द 3 एस्पेक्ट्स जो कि एक ऐप करेगा, जहाँ पे हम ऐप में हम कलेक्शंस मैनेज कर सकते हैं, ग्रुप्स मैनेज कर सकते हैं। Second aspect that we covered, how to use the Mendeley site option as shown here. Then third option is web importer. Web importer में तो कोई issue नहीं है ना, if you remember correctly. Suppose science direct में मैं दोबारा जाता हूँ। Search anything. Go to the article. You can add it to Mendeley from here. You can share also elsewhere. You can take citation option. If I go to the article में जाता हूँ, खुल जाएगा। ठीक है, इट्स इजी टू ऐड इट, ऐड टू मेंडली। एक बार और कर देता हूँ, देखता हूँ कि ये खुलता है कि नहीं। लास्ट टाइम ये ओपन नहीं हुआ। आई थिंक मेटा डेटा ऐड कर रहा है उसमें। हाँ, बस हम लोग पेज क्या देखेंगे, दिस इज द पेज ओनली दैट वी आर गोइंग टू सी देयर, थोड़ा कंसाइज में। वहाँ पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा राइट अपर कॉर्नर में, ऐड टू लाइब्रेरी। There we can just have to click that button to add it there. और बाद में हम जब यहाँ ओपन करेंगे इसको, वो हमें देखना शुरू हो जाएगा। That is all. ठीक है, I conclude here
you can get back to ma'am. Ma'am will inform me whatever queries you want to get revert to. Okay, thank you. Hope you like the session. Thank you. And देखिए सपोर्ट में मिलता है देखिए बाय द एंड माइक की जरूरत नहीं पड़ी. हमारे हाथ में ठीक हो गया. Thank you, sir. On behalf of everyone gathered here, I express our gratitude to Dr. Kushal for such an informative presentation. Your depth of knowledge coupled with your engaging delivery has made this learning experience truly exceptional for all of us. We appreciate your contribution to our professional growth, sir. As a token of appreciation, I request Professor Vinita Gupta, Dean Center for Media Research and Publications, to present a memento to Dr. Kushal. I now request Professor Vinita Gupta to propose a vote of thanks. Thank you, Dr. Sumedha. Namaskar. I, Dr. Vinita Gupta, on behalf of Maharaj Agsen Institute of Management Studies, Center of Media, Research and Publication, take opportunity to propose vote of thanks on this momentous occasion. It was a long-awaited workshop showing pathways of publishing in high-quality journals. My deepest gratitude to Dr. Nandkishore Garg, Founder Chairman and Chief Advisor, Maharaj Agsen Technical Education Society mates, who is always our guiding light and promoting such kind of activities to create research environment in the institute. My heartfelt gratitude to Elsewhere for supporting us in organizing this workshop, which is definitely a need of the hour. I wish to express my sincere gratitude to Dr. Nitin Ghoshal for sparing your valuable time to share your knowledge on this topic. Thank you very much, sir. I convey my gratitude to our Director, Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra, for her guidance and support. Heartfelt thanks to all my dear faculty colleagues for making this workshop a fruitful one. I also wish to convey my heartfelt thanks to all the members of Center of Media, Research and Publications, Dr. Sumedha Datta, Dr. Simran Kaur, Dr. Shikha Sharma, Dr. Rachna Jain and Dr. Arpita Manchanda. Thanks to Mr. Anuj Kumar for technical support, Mr. Umesh Singh and Mr. Pramod Kumar for capturing this event in the cameras for a long time. Once again, thanks to everyone present here. Namaskar. Thank you so much.